now. Please put your hands together for that. Currently, she is the center in charge of Brahma Kumaris Om Shanti Bhavan at Sector 12, Huda, Panipat. She is a senior Raj Yoga teacher and also an executive member of Youth Wing of Brahma Kumaris. She has had many achievements. We have just noted down quite a few of them. She is a regular faculty member of NFL and IOCL Panipat Refinery. She has participated as a motivational speaker in various state and national level seminars, conferences, and workshops. She has also participated in many campaigns organized by various wings of Brahma Kumaris, such as Touch the Light, Clean India, Green India, Nature, Environment, and Disaster Management campaigns, and whatnot. Under her expert guidance, many creative projects were successful. Lots of people. Few of them are Empowered Youth Forum, Spiritual Cafe, Drug De-Addiction Camp, eye camps, personality development courses for youths, etc. She also has a YouTube channel and you all can get benefits and guidance through it. Schools, colleges, universities, banks, hospital organizations, corporates, clubs, villages, and till now she delivered thousands of talks on various management and value education topics such as stress-free living, art of positive thinking, effective personality, harmony in relationships, secret of success, password to happiness, moral values, creative meditation, etc. The engineering wing of Brahma Kumaris for her high-level contribution in spiritual services in respective fields. She was honored by DC Panipat in Rashtriya Mahila Divas on 8th March 2008 by giving an appreciation certificate for the valuable contribution in the fields of social services. So Brahma Kumari Sister Sunita, we are overwhelmed and excited with your presence in our school campus. Now may we all have the honor and pleasure to get motivation and guidance through your precious words. Please welcome her once again with a round of applause. गुड मॉर्निंग। सभी एक बार मुस्कुराते हुए बोलेंगे ओम शांति। परम पिता परमात्मा की अति प्रिय संतान, मंच पर उपस्थित सम्मानित मंच और प्यारे बच्चों, आज परमात्मा पिता ने आप सबसे मिलने का मौका दिया है। सबसे पहले मैं गॉड फादर का दिल से थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने आप सबसे मिलने का मौका दिया। आज हम आपस में मिलकर कुछ अच्छी चर्चा करेंगे, कुछ अच्छी शेयरिंग करेंगे, जिसमें हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखेंगे। आर यू रेडी? सब तैयार हैं? आप सब अपनी खुशी से सुनने के लिए बैठे हैं? कौन कौन अपनी खुशी से बैठे हैं? जो सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं? वेरी गुड, 100%। अपने लिए खुद ही तालियां बजाएंगे आप। माई हम्बल रिक्वेस्ट इज कि जब हम यहाँ पर सुनेंगे तो हम ध्यान से सुनेंगे। कैसे सुनेंगे? ध्यान से सुनेंगे। एक होता है सुनना और एक होता है ध्यान से सुनना। इंग्लिश में दो शब्द आते हैं, एक लिसनिंग और दूसरा हियरिंग। दोनों का मीनिंग सुनना होता है। तो जब हम कहते हैं कि ध्यान से सुनो, इसका मतलब लिसन फ्रॉम द हार्ट। आप जो कुछ ध्यान से सुनेंगे वो आपके जीवन में आ जाएगा। आप सबको ठीक सुनाई दे रहे हैं? ठीक सुनाई दे रहे हैं तो प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है, छोटी सी एक्सरसाइज से हम शुरुआत करेंगे। जो कुछ मैं कहूंगी वो आप करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जल्दी से अपने पैरों को टच कीजिए, पैरों को, अपने घुटनों को, अपने कंधों को, अपने चेहरे को, अपने गाल को। कहाँ है आप सबके गाल? यहाँ है ना? आप सब यहाँ कैसे चले गए? छोटी सी एक्सरसाइज है जिसमें दो मैसेज हैं और हम बहुत ध्यान से सुनेंगे।
वो कौन से 2 मैसेज हैं? आप में से कोई बताएगा इस एक्सरसाइज के 2 मैसेज कौन से हैं? जो भी पार्टिसिपेट करना चाहे रेज योर हैंड प्लीज। कोई भी बताना चाहेगा? आप इधर उधर मुड़ के नहीं देखेंगे, आपको खुद अपने लिए बताना है। आप में से कोई आना चाहे? जो हमने एक्सरसाइज की इसके 2 मैसेज हैं एंड बोथ आर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी सभा में जाएं, सबसे पहले उस बात को ध्यान से सुनना चाहिए। कभी कभी हम सुन रहे होते हैं, कुछ और भी सोच रहे होते हैं, इसलिए जो कुछ हमने सुना वो इधर से सुनते हैं, यहां से चला जाता है। सबसे पहले हमें ध्यान से सुनना चाहिए। मैंने आपको 2 बार कहा कि जो कुछ मैं कहूंगी वो आप करेंगे, ठीक है? दूसरी बात, जब हम कुछ कहते हैं करने के लिए तो इसमें गलती आपकी नहीं थी। मैंने कहा था अपना हाथ गाल पे रखिए और मेरा हाथ यहाँ पे था, तो आप तो मुझे देख रहे थे ना, आपने मुझे फॉलो किया, इसलिए आप सबका हाथ कहाँ चला गया? यहाँ पे। इसका मतलब आप किसी को कितनी अच्छी बात कहें, किसी को कितनी अच्छी बात सुनाएं, लोग वही करते हैं जो आप कर रहे हैं। Am I right? किस किस को समझ में आया? समझ में आया? वेरी गुड। अब कहीं पर भी हम जाएंगे तो हम ध्यान से सुनेंगे। किसी को कुछ कहने से पहले खुद करना होता है। अगर आप करेंगे नहीं, ऐसे किसी को सुनाएंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है आप सबको देखकर। इस कहानी में मैं आपसे बहुत कुछ पूछूंगी, ठीक है? कौन कौन से ध्यान से सुन रहे हैं बच्चे? वो हाथ खड़ा करें, पीछे वाले। एक बार एक गुरुजी का आश्रम शहर से काफी दूर था और उनके 2 शिष्य थे। एक का नाम था रामा और दूसरे का नाम था दामा। कौन कौन से 2 शिष्य थे? रामा और दामा। जो रामा था वो बहुत ही मिलनसार था, बहुत प्रेम था, दूसरे का रिस्पेक्ट करने वाला। जब उन्हें कोई आज्ञा दी जाती तो बहुत खुश होता था। ऑन द अदर हैंड जो दामा था उसको छोटी छोटी बात में बहुत गुस्सा आता था। किसी ने कुछ काम बताया तो उसको अच्छा नहीं लगता था, और अगर गुरुजी कोई आज्ञा दे दे तो उसको बहुत ही गुस्सा आता था। तो एक दिन गुरुजी ने दोनों को सुबह सुबह 5 बजे अपने पास बुलाया। दोनों को एक छोटी सी आज्ञा दी, और वो आज्ञा ये थी कि दोनों को एक एक टोकरी दी और उसके अंदर बहुत अच्छे फ्लावर्स थे, फ्रेश फ्लावर्स थे, और ये कहा कि आपने ये उनको देने हैं जो मुस्कुरा रहा हो। क्या कंडीशन थी? फूल किसको देना है? जो मुस्कुरा रहा हो। आप सब सुन के भी नहीं मुस्कुरा रहे। गुरुजी ने दोनों को बुलाया, दोनों अपने अपने कार्य के लिए चले गए, रामा भी और दामा भी। रामा ने अपनी बास्केट ली, फ्लावर्स लिए, सबको बांटे, 1 घंटे में वापस आ गया। जो दूसरा था दामा, उसको ऐसा लगा कि कैसा काम मुझे दे दिया। एक तो सुबह सुबह जल्दी 5 बजे बुलाया, गुरुजी ने नींद खराब कर दी। मन में उसका बहुत गुस्सा था, लेकिन बास्केट लेके चला ही गया। कहाँ चला गया? सबको बांटने के लिए। जब गुरुजी ने बुलाया तो रामा पहुंच गया, लेकिन दामा नजर नहीं आया। तो उन्होंने पूछा, रामा, दामा कहाँ है? तो उन्होंने कहा, दामा तो अभी तक वापस ही नहीं आया, बहुत मुश्किल से ढूंढ के लाई, 2 घंटे हो चुके थे। जब वो वापस आया तो उसने जोर से टोकरी फेंक दी। कहीं पर फूल चले गए, कहीं पे टोकरी, और बहुत गुस्से में कहता है, गुरुजी आप कैसे कैसे काम देते हो? क्या आज के समय में कोई मुस्कुराना भी जानता है? मैं तो जहां भी गया कोई नहीं मुस्कुरा रहा था, इसलिए सारे फूल वापस आ गए। अब गुरुजी ने रामा को बुलाया, रामा आप बताओ आपने फूल कैसे बांटे? तो रामा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। क्या जवाब दिया होगा? रेज योर हैंड प्लीज, जो मुस्कुरा रहा हो, ठीक है? तो उन्होंने, गुरुजी ने जब बुलाया तो रामा ने बताया कि गुरुजी मैं भी जहां गया कोई मुस्कुरा नहीं रहा था, मैं फूल आगे करता था, जब मैं मुस्कुराता था तो सामने वाला भी मुस्कुराता था। अब दामा को अपनी गलती समझ में आ गई कि मुझे कैसे बांटना चाहिए था। पहले किसे मुस्कुराना था? पहले खुद को मुस्कुराना था। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि जब आपको कोई काम दिया जाता है, आपके टीचर्स आपको होमवर्क देते हैं,
आपकी स्थिति कैसी होती है, रामा जैसी या दामा जैसी? कैसी होती है? कुछ लोग रामा बोल रहे हैं, कुछ दामा। चलिए आज हम दामा से अपने मन में पक्का कर लीजिए कि मुझे अपनी बुक्स से, अपनी स्टडी से, अपने करियर से बहुत प्यार करना है। जब आप खुशी खुशी पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। कोई भी सब्जेक्ट चाहे आपको बोर करने वाला लगता हो, लेकिन जब आप खुशी से पढ़ेंगे तो आपको कभी भी थकान नहीं होगी। और अपने जीवन में अपने आप को याद कराइए कि मुझे दामा जैसा नहीं, रामा जैसा बनना है। कभी कभी ऐसा होता है ना, घर में आपके अनुसार सब्जी नहीं बनी हुई, भोजन आपकी पसंद का नहीं है। आपकी स्थिति कैसी होती है, रामा जैसी कि दामा जैसी? दामा जैसी। पर हम दामा से रामा बन सकते हैं। जो कुछ घर में बनता है, प्यार से बनता है, वो प्रसाद की तरह से होता है। उस फूड को परमात्मा का थैंक्स करते हुए ले लीजिए। जो खुशी से, प्यार से बनाया जाता है, वो भोजन आपके मन को बहुत ताकत देता है। कभी कभी हम कुछ चीजें नहीं खाते हैं, हम सोचते हैं ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, लेकिन अपने मन की स्थिति को रामा जैसी बनाइए। जो काम करना है मुस्कुराते हुए करना है। क्या क्या मुस्कुराते हुए करेंगे? आज से पढ़ेंगे मुस्कुराते हुए, खेलेंगे मुस्कुराते हुए, एक दूसरे से बात करेंगे मुस्कुराते हुए। जब कभी मन में गुस्सा आए तो अपने को क्या याद दिलाएंगे? हमें रामा जैसा बनना है, दामा जैसा नहीं बनना। टीचर्स का सम्मान नहीं करते। देखिए, जो टीचर होता है उसका रोल बहुत बड़ा होता है। वो बच्चे को राष्ट्रपति भी बना सकता है, राष्ट्रपिता भी बना सकता है। हमें अपने टीचर्स का हमेशा सम्मान करना है, अपने माता पिता का भी दिल से सम्मान करना है और खुद का भी सम्मान करना है। खुद से कभी निराश ना होना, ये जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होती है। लव यूर सेल्फ, रिस्पेक्ट यूर सेल्फ। पहले अपने आप से प्यार कीजिए, अपना सम्मान कीजिए। कभी कभी हम छोटी छोटी बात में निराश हो जाते हैं, मैं नहीं कर सकता, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। कुछ भी मुश्किल नहीं, अपने को याद दिलाइए, यस आई कैन डू इट, आई मस्ट डू इट। जब एक चीज को आपने 10-11 बार अपने आप को बोल दिया तो आप उस कार्य को कर सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता पिता से गुड मॉर्निंग करते हैं, गॉड से भी गुड मॉर्निंग करते हैं। बी ऑनेस्ट, कौन कौन गॉड से उठते ही गुड मॉर्निंग करते हैं? मॉर्निंग। अच्छा, काफी बच्चे जो नहीं करते हैं, जो करते हैं बहुत अच्छा। चलिए आज से शुरू कर सकते हैं। जल्दी ही 2023 आने वाला है। आज से हम अपने दिन की शुरुआत जरूर करेंगे। रात को जब सोएंगे तो दिन में जो कुछ भी हुआ सब कुछ परमात्मा को सौंप देंगे और मुस्कुराते हुए परमात्मा से गुड नाइट करके सोएंगे। जो बच्चे रात को जल्दी सोते हैं वो जल्दी उठ सकते हैं। अगर रात को जल्दी नहीं सोएंगे तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे। हमारे विद्यालय में जिससे हम आए हैं, हम एक बहुत अच्छी बात सीखते हैं कि रात को 10 मतलब बस सो जाइए और सुबह 4 बजे उठ जाइए। जो 4 बजे उठते हैं वो परमात्मा के लाडले बच्चे होते हैं। जो 5 बजे उठते हैं वो योगी होते हैं। जो 6 बजे उठते हैं वो भोगी होते हैं। जो 7 बजे उठते हैं वो रोगी होते हैं। जो 8 बजे उठते हैं उनका इस लिस्ट में नाम नहीं है। एक कॉलेज में हम गए तो वहां पे एक बच्चे ने किसी ने भी हाथ नहीं खड़ा किया। खैर मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ कौन 4 बजे उठता है कौन 5 बजे, लेकिन उस टाइम हमने पूछा, एक बच्चे ने किसी में हाथ नहीं खड़ा किया। 4 बजे नहीं, 5 बजे नहीं, 10 बजे नहीं। मैंने कहा आप किसी में भी हाथ नहीं खड़ा कर रहे हो? कहते मैं 12 बजे ही उठता हूँ जी। दिन में जो 12 बजे उठता है तो दिन की शुरुआत कितनी देरी से हम कर रहे हैं। हमारे दिन की शुरुआत जल्दी होनी चाहिए और जल्दी वही उठ सकते हैं जो रात को जल्दी सोते हैं। आप केवल कुछ दिन करके देखिए कि जब आप रात को जल्दी सोए तो सुबह आप उठेंगे मुस्कुराते हुए और उठते ही परमात्मा से आप गुड मॉर्निंग करेंगे। रात को जब सोएंगे तो परमात्मा से गुड नाइट करेंगे और सुबह उठ करके अपने माता पिता से जरूर प्रणाम कहिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। माता पिता से हमें आशीर्वाद मिलता है। माता पिता जो कुछ कहते हैं, कभी कभी हमें वो डांट भी देते हैं, टीचर्स भी डांट देते हैं। हमें कभी भी उनकी डांट का बुरा नहीं मानना। अपने को एक बात सिखाइए कि उनकी डांट में भी प्यार समाया हुआ है।
वो हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। माता पिता का जो बच्चे सम्मान करते हैं उन्हें वो आशीर्वाद और दुआएं मिलती हैं जो बाहर से कहीं से नहीं मिल सकती। मुझे एक छोटी सी बात याद आई। एक बार की बात है कि एक बच्चा अपने पिता के साथ चल रहा था। वो छोटा था। रास्ते में वो जो कुछ देख रहा था तो वो पिता से पूछ रहा था कि पिताजी ये क्या है। जैसे गाड़ी देखी, पूछता ये क्या है, तो पापा ने बताया कि गाड़ी है। फिर उसके बाद फिर उसने एक बगीचे को देखा, फूलों को देखा, सबके दाम पूछे। पिताजी ने बहुत प्यार से बताया कि ये फूल है, ये झूला है, ये मोर है, बहुत सारी चीजें बताई। चलते चलते दीवार पर एक कबूतर दिखाई दिया। अब बच्चे ने पूछा पिताजी ये क्या है, तो पिताजी ने बहुत प्यार से कहा बेटा ये कबूतर है। फिर दोबारा पूछता है, पिताजी ने फिर से प्यार से कहा बेटा ये कबूतर है। कैन यू बिलीव, उस बच्चे ने यही बात 7 टाइम पूछी। हर बार पिताजी ने बताया प्यार से, क्या बताया, बेटा ये कबूतर है। ध्यान से सुनिएगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। बच्चा बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया। घर में बैठे हुए थे, सब मिलके भोजन कर रहे थे। घर में आंगन में बैठे बैठे जैसे ही भोजन कर रहे थे, अब पिताजी बुजुर्ग हो गए और बेटा बहुत बड़ा ऑफिसर बना। ऐसे ओपन एरिया में भोजन करते अचानक दीवार पे एक कबूतर आके बैठा। अब पिताजी ने बच्चे से पूछा बेटा ये क्या है, तो बेटे ने बताया पिताजी ये कबूतर है। पिताजी को सुनाई नहीं दिया। उन्होंने दोबारा पूछा बेटा ये क्या है। बच्चे ने जवाब दिया जब सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, तो टिक टिक क्यों लगा रखी है। उस समय पिताजी को वो बात याद आई। कौन सी, कि जब ये छोटा था तो इसने 7 टाइम पूछा था, तो पिताजी ने कैसे बताया था, प्यार से। आज से हम भी पक्का कर लेंगे, हमारे बड़े अगर कोई बात हमसे बार बार पूछें, एज फैक्टर के कारण वो बात को रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि वो बुजुर्ग होने के कारण भूल जाते हैं। आयु के हिसाब से वो बात को स्लिप हो जाने के कारण आपसे बार बार पूछ सकते हैं। आप उनसे जब भी बोलेंगे प्यार से बोलेंगे। कर सकते हैं, एक छोटा सा मंत्र लेके जाएंगे आप और हमेशा उसको यूज करेंगे। मेरे साथ साथ बोलेंगे, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ के बोलो, शुभ शुभ बोलो। किस बच्चे को याद होगी ये बातें? आपके बोल में 5 बातें होनी चाहिए। रेज योर हैंड प्लीज। आपके लिए प्राइज लेके आई है रोशनी दीदी, राइट? आइए, कौन बताएगा आपके बोल कैसे होने चाहिए? कम आइए आइए। कैसे बोलना चाहिए? 3 बातें ठीक सुनाइए। व्हाट्स योर गुड नेम प्लीज? अच्छा, इनके लिए ताली बजाएंगे। 3 बातें ठीक बोली है। लेट्स सी कौन कौन विन करता है ब्लेसिंग कार्ड। कम आइए आइए, आपने हाथ खड़ा किया ना। बहुत सारे ब्लेसिंग कार्ड है। कम कम देखते कौन ठीक सुनाता है। 5 बातें आपके बोल में कौन से 5 बातें होनी चाहिए? यस, बैठिए बैठिए, पीछे वाले बैठ जाएंगे। पहले देखते हैं इनमें से कौन सुनाता है। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और शुभ शुभ बोलो। 4 हो गए हैं, 1 रह गया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी कीजिए। कम बोलो, मीठा बोलो, ध्यान से बोलो, सोच समझ के बोलो, शुभ शुभ बोलो। नेक्स्ट। कम बोलो, धीमे बोलो, प्यार से बोलो, शुभ शुभ बोलो, प्यार बस से बस, और नहीं आएंगे, और नहीं आएंगे। आपसे दूसरा क्वेश्चन होगा। 1 मिनट, फिर से बोलिए। कम बोलो, धीमे बोलो, प्यार से बोलो, शुभ शुभ बोलो, ध्यान से सोच के बोलो। 1 रह गया। कोई भी जाएंगे नहीं, जो सुना रहे हैं इस साइड पे रहिए। ब्लेसिंग कार्ड देंगे रोशनी दीदी, आप इनको। कम बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ के बोलो, शुभ शुभ बोलो और मीठा बोलो। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? आराध्या। आराध्या। ताली बजाएंगे आराध्या के लिए। कम बोलो, बोलना। हम कितने हाथ नीचे हो गए हैं? चेक योर सेल्फ, चेक एंड चेंज। ध्यान से सुनिएगा, बात वही होती है
कहने का तरीका सबका अलग अलग होता है। जो भी बात आप कहेंगे आपको प्यार से, सम्मान से कहनी है और झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। 1 नवंबर से 7 नवंबर तक जिन्होंने एक भी अपशब्द नहीं बोला वो हाथ खड़ा करेंगे। काफी सारे बच्चे हैं, खड़े हो जाएंगे अपनी सीट पर। देखिए, आपके पेरेंट्स से भी पूछा जाएगा, आपके टीचर से भी। एक भी अपशब्द नहीं बोला, पागल शब्द भी नहीं बोला। अच्छा, वेरी गुड। इनके लिए जोरदार तालियां। बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे। ऐसे कितने बच्चे हैं जो ये संकल्प लेते हैं कि अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब हम किसी को अपशब्द नहीं बोलेंगे, टोंटिंग वे के बोल नहीं बोलेंगे। पीछे वालों का क्या विचार है? बोलेंगे? देखिए, अपने आप को बदलना सबसे बड़ा ज्ञान होता है। लाफ विद अदर्स बट डोंट लाफ ऑन अदर्स। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी वैल्यू है। मान लो किसी से कुछ सुनाने की हिम्मत नहीं हो रही, थोड़ा फियर है, तो हमें उसको मोटिवेट करना चाहिए, उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। और अच्छी बातें सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। जब तक जीना है तब तक सीखना है, जब तक जीना है तब तक सीखना है। कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे सब कुछ आता है। ये सोचना कि मुझे सब कुछ आता है सबसे बड़ा अज्ञान है इस दुनिया में। जब तक जिए तब तक सीखते रहें। कभी कभी हम बच्चों से भी अच्छी बात सीखते हैं, युवाओं से भी सीखते हैं, बड़ों से भी सीखते हैं। जिस बच्चे ने मन ही मन ये पक्का कर लिया, अगर बाई चांस पहले आप अपशब्द बोलते हैं तो आप अपनी डायरी में लिखिएगा कि मैंने अपने में कितना सुधार किया। जब आप स्वयं का परिवर्तन करेंगे तो दूसरों का परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। मुझे एक चिड़िया की बात हमेशा याद रहती है। ये हमारे चिड़िया जैसे ही पर्यावरण दीदी में मिलने आती हैं और आज हम भी पानीपत से आपके बीच में आए हैं। कई लोग सोचते केवल हमारे बदलने से क्या हो जाएगा, हमने अपने बोल को ठीक कर लिया, हमारे परिवार वाले प्यार से नहीं बोलते या दूसरे लोग नहीं बोलते। एक चीज पक्की कर लीजिए, जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। एक बार की बात है कि एक जंगल में आग लग जाती है। एक बार ना एक जंगल में आग लग जाती है, वहां पर जितने भी जीव जंतु होते हैं सब भाग जाते हैं, सब अपने को बचाना चाहते हैं, सब दौड़ के चले जाते हैं। एक चिड़िया ये दृश्य देख रही होती है कि जंगल में आग लग गई। और वो सोचते हैं कि वर्षों से इस जंगल में मुझे सहारा मिला, आश्रय मिला, यहाँ पर मुझे ऐसे छोड़ के जाना ठीक नहीं। चिड़िया ने क्या सोचा कि इसको ऐसे छोड़ के जाना ठीक नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर आश्रय मिला, ये मेरा आश्रय स्थल है। वो चिड़िया सोचती है कि मैं इसकी आग को कैसे बुझाऊं। सोच के देखिए, चिड़िया का कितना अच्छा थॉट है कि मैं इस जंगल की आग को कैसे बुझाऊं। अब वो ये सोचकर बहुत दौड़ी दौड़ी जाती है। पास में एक रिवर थी, वहां से चोंच भर पानी लाती है और डालती है। आप सोच के देखें ऐसे दृश्य को कि वो बार बार जा रही है, पानी ला रही है और डाल रही है। बाकी सारे जीव हंसते हैं और कहते हैं, चिड़िया तुम क्या सोचती हो, तुम्हारी नन्ही सी चोंच से जंगल की आग बुझ जाएगी क्या? बड़ा सुंदर जवाब दिया चिड़िया ने। क्या दिया होगा अभी इस ग्रुप में से बताएंगे। सुना? अभी तो आप कम बोलो धीरे बोलो बेटे, है ना? वापिस आइए, कौन बताएगा? चिड़िया की बात किस किसने ध्यान से सुनी? यस प्लीज। चिड़िया ये सोचती है कि जंगल की आग बुझे या ना बुझे, लेकिन मेरे मन को तो संतुष्टि मिलेगी। जी, और सोचिए, और अच्छी बात है। फर्स्ट ये वाला ग्रुप, हाँ जी, इनको दीजिए माइक। चिड़िया ये सोचती है कि अगर नाम आएगा तो बचाने वालों में से आएगा, भागने वालों में से नहीं। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? आरव। आरव। आप दोनों आ जाएंगे, रोशनी दीदी से ले लेंगे ब्लेसिंग कार्ड। ताली बजाएंगे इसके लिए। बहुत सुंदर सी बात जी। काम माइक दे दीजिए। पीछे वाले बच्चों में से कोई भी नहीं आ रहा, क्या बात? और चिड़िया कहती है कि भले ही मैं जंगल की आग ना बुझा पाऊं, पर जिसने मुझे आश्रय दिया है उस जंगल का कर्ज मैं चुका दूंगी। अच्छा, उधर दीजिए। नेक्स्ट।
चिड़िया ये सोचती है कि भले ही मैं ये आग ना बुझा पाऊँ, लेकिन कम से कम प्रयास तो कर ही सकती हूँ। यस, क्या नाम है? आदि जैन। आदि जैन, इसके लिए भी ताली बजाएंगे। आप सबने बहुत अच्छा सोचा। जो चिड़िया का विचार था वो ये था, सिट डाउन प्लीज, आ जाएंगे इधर, ऊपर आ जाएंगे। चिड़िया ने पहली बात तो ये सोची, कहती मुझे ये नहीं पता जंगल की आग बुझेगी या नहीं, कम से कम मैं अपना प्रयास तो कर रही हूँ। जो आदि जैन ने बताया, कम से कम मैं अपना प्रयास तो कर ही रही हूँ। दूसरी बात, जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में होगा, है ना? आज तक की हम याद कर रहे हैं ना, तो जो बजा सकते हैं उस चिड़िया के लिए ताली, जोरदार ताली बजा। हमारे भी जो प्रयास है ना, वो चिड़िया जैसे ही है। हर एक ने ये सोचना है मैंने खुद को बदलना है, मैं बदलूंगा तो दूसरे स्वतः ही बदल जाएंगे। बुझ जाती हैं। परमात्मा और प्रकृति उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद खुद करते हैं। तो आज से हमारे चिड़िया जैसे प्रयास जारी रहेंगे। ये मत सोचिए केवल मेरे बदलने से क्या हो जाएगा। हम प्यार से बोलते हैं, दूसरे प्यार से नहीं बोलते, वो अपशब्द बोलते हैं, वो बेशक बोले, आपको लेना नहीं है। आपका नाम जो लेके पुकारे, आप उसकी ओर ही तो देखेंगे ना। अगर कोई आपको गलत बोलता है तो आपको गलत चीजें लेनी नहीं है। आपको अपने से प्यार रखना है और अपने आप को टाइम देना है। थोड़ी देर के लिए अपने आप को टाइम जरूर दीजिए। आपको टाइम कभी मिलेगा नहीं। जो काम जरूरी होता है उसके लिए टाइम निकाला जाता है। आजकल हम एटीएम यूज करते हैं। एटीएम हम जो ज्ञान मार्ग में यूज करते हैं वो है ऑल टाइम मेडिटेशन। जब आप रात को सोते हो तो आप 3 मिनट मेडिटेशन करके सोइए। जिसने जो किया, अच्छा हुआ बुरा हुआ, सब परमात्मा को देकर सोइए। उसको हम कहते हैं क्षमा योग, फॉरगिव अदर्स। जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं तो क्षमा करना एक बहुत अच्छा गुण होता है। जब आप सुबह उठते हैं तो परमात्मा का थैंक्स कीजिए कि उन्होंने आपको एक अच्छा दिन दिया। गुड मॉर्निंग के साथ सुबह 3 मिनट मेडिटेशन कर लीजिए। 3 मिनट मुश्किल भी नहीं है ना, 3 मिनट हर कोई कर सकता है। उठते ही परमात्मा को कहिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज का दिन दिया। आज मुझे हर काम मुस्कुराते हुए करना है और जिम्मेवारी से करना है। जो काम करना है जिम्मेवारी से करना है। जब इवनिंग का टाइम होता है तो उस समय आपको सबके लिए ब्लेसिंग्स, सबके लिए दुआएं कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, इस तरह से आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने का मतलब होता है अच्छा सोचना। मेडिटेशन को हम ध्यान कहते हैं। आप सबके लिए ध्यान क्या है? ध्यान से पढ़ना ही ध्यान है, लेकिन वो शक्ति हम में आए उसके लिए हम थोड़ी देर साइलेंस में जरूर रहें। जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन हमारा मन रुचि से पढ़े उसके लिए हम शुरू में ध्यान जरूर करते हैं। जब आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो आपका पढ़ने का भी मन करेगा और आपकी व्यवहार की कला भी बहुत अच्छी होगी। याद रखिए, आप अपने ही तरीके से आगे बढ़िए, किसी को आगे गिरा के नहीं। एक मिस्टर झाल हैं जिनसे आपको हमेशा बच के रहना है। वो कौन है आप ध्यान से समझ लेंगे। जे फॉर जेलेसी। किसी से भी ईर्ष्या मत करो। कोई आपसे आगे जाता है, आप और मेहनत करो और आगे जाइए, पर किसी को गिरा के आगे नहीं जाना है। जो लोग ईर्ष्या करते हैं वो ईश्वर चिंतन नहीं कर पाते। जब आप किसी से ईर्ष्या करते हैं तो किसी से कुछ छीन नहीं सकते, और जो नहीं है वो कोई दे भी नहीं सकता। मैं आपको प्रैक्टिकल घटना बताती हूँ। जो सेंटर है पानीपत का, वो स्कूल के पास है। वहाँ बच्चे अक्सर आते रहते हैं, बड़े बड़े ग्रुप भी आते हैं। तो एक बार 12th क्लास का रिजल्ट आया। एक बच्चा सुबह आया, एक शाम को आया। तो जो सुबह आया, मैंने उससे पूछा आपके कितने मार्क्स हैं? तो उसने कहा मेरे 98% है। तो मैंने कहा आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपके बहुत अच्छे अंक हैं। कहते मैं फर्स्ट नहीं हूँ दीदी, फर्स्ट वाला कोई और है। मैंने कहा उसके कितने हैं? तो उसके 98.6% है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपके भी बहुत अच्छे हैं। कहते नहीं मेरे अच्छे नहीं हैं, मैं तो सेकंड हूँ ना, फर्स्ट तो वो है। शाम को वो दूसरा आया, मैंने उसको कहा मुबारक हो, आपके 98.6% हैं। उसने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं इतना प्रसन्न नहीं हूँ।
जो सुबह वाला था उसने कहा मैं इतना प्रसन्न नहीं हूँ, फर्स्ट वाले ने कहा मैं बहुत खुश हूँ। दोनों जब साथ मिले, मैंने पूछा जो 98% पर था, आप क्यों प्रसन्न क्यों नहीं है? कहते अगर ये वाला नहीं होता ना व्यक्ति, ये बच्चा नहीं होता तो मैं ही फर्स्ट था ना, मैंने इसको बिल्कुल भी कांग्रेचुलेशन नहीं कहा। फर्स्ट वाले को उसने विश तक नहीं किया। अब आप सोचो, विद्या हमें क्या सिखाती है? विद्या विनम्रता सिखाती है, ना कि ईर्ष्या करना। आप दौड़े अच्छी बात है, पर किसी की टांग खींच के आप दौड़ रहे हैं, इसका मतलब आप उस दौड़ को समझ नहीं रहे हैं। अगर कोई हमसे आगे जाता है, हमें उनको देख के भी खुश होना है। आप पूरे प्रयास करो, 20 नाखूनों का जोर लगाओ, लेकिन किसी को भी गिराकर हम आगे नहीं जा सकते। नो जेलेसी, किसी से भी कोई जेलेसी नहीं। अगर है तो आज के दिन उसको मन से निकाल देंगे। याद रखेंगे जो हमारे पास है वो बहुत अच्छा, जो नहीं भी है वो आ जाएगा, लेकिन मुझे किसी से भी जेलेसी नहीं करनी है। उसके बाद H आता है झाल में, H फॉर हेट्रेड, किसी से भी घृणा नहीं करनी है। कोई भी व्यक्ति गलत करता है तो गलत कार्य से घृणा करो कि मुझे ऐसा नहीं करना, उस व्यक्ति से घृणा नहीं करनी। A मीन्स एंगर, एंगर इज 1 लेटर लेस देन डेंजर। डेंजर का साइन इलेक्ट्रिक पोल्स पे होता है। जब आप क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो आपकी 1.5 घंटे तक निर्णय शक्ति काम नहीं करती। इसलिए जब भी गुस्सा आए उसको पोस्टपोन कर देना है। आज नहीं, 1 घंटे के बाद करेंगे। यूज पोस्टपोन थ्योरी। कैसे करेंगे? अभी मन में गुस्सा आ रहा है तो उस बात का तुरंत रिप्लाई नहीं करना। एकदम जवाब हम देते हैं तो गलत हो जाता है। आप कोशिश करें उस समय शांत रहें और अपने आप को याद दिलाएं, आई एम ए पीसफुल स्टार। क्या याद दिलाएंगे? कौन कौन है पीसफुल स्टार? सबका स्टार यहाँ पर है जहां पर हम बिंदी लगाते हैं। अपने को याद दिलाएंगे मैं पीसफुल स्टार हूं, और क्रोध को टाल दीजिए 1 घंटे के लिए। फिर बाद में आपको उस बात पे गुस्सा बिल्कुल नहीं आएगा। आपने सुनी होगी एक व्यक्ति की कहानी। एक व्यक्ति सर्दियों में भी एक्सरसाइज करने जाता था। उससे किसी ने पूछा तुम्हारा मन नहीं करता कि मैं सो जाऊं? कहते जी करता है मेरा मन सोने के लिए। कहते फिर कैसे करते हो? कहते मैं रोज अपने मन को कहता हूँ आज एक्सरसाइज करने जाना है, कल सोना है। आज जाना है, कल सोना। कल तो कभी आता ही नहीं है। तो सुबह सुबह मन करता है ना सोने का, तो आपने क्या कहना है? आज पढ़ना है, कल सोना है। आज पढ़ना है, कल सोना है। कल तो कभी आएगा ही नहीं। इस तरह से अपने मन को आपने जीत लेना है। ठीक है, तो क्रोध को पोस्टपोन करेंगे। उसके बाद है एल मतलब लेग पुलिंग। किसी को भी हमें गिराना नहीं, बल्कि उत्साहित करना है कि आप भी आगे जा सकते हो, आप भी आगे बढ़ सकते हो। मैं समझती हूँ जितनी आपको अच्छी बातें आज आपने सुनी हैं, आपने इनको अपने जीवन में लाना है। एक होता है अच्छी बातें सुनना, एक होता है अच्छा बनना। सुनने में कम वक्त लगता है, बनने में पूरा जीवन लगता है। ध्यान से सुनिएगा। एक प्रोफेसर चाय पी रहे थे और न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे थे। जब वो चाय पीने लगे तो उन्हें लगा कि चाय फीकी है। उन्होंने अपनी बिटिया को बुलाया और कहा कि बेटा इसमें चीनी डाल दो। उनकी बिटिया गई, फटाफट चीनी डाल दी। जब फिर उन्होंने दोबारा चाय पीनी शुरू की, चाय अभी भी फीकी थी। अब चाय फीकी क्यों थी? इस ग्रुप में से कोई बताए कि बारी पहले नहीं आई, वो बताएंगे। यस, हाथ खड़ा करेंगे। चाय फीकी क्यों थी? यस प्लीज। नहीं, इनका हो गया पहले, है ना? आप बोलिए। क्योंकि बेटे ने प्यार से नहीं बनाई थी। प्यार से ही बनाई थी, चीनी भी प्यार से डाली थी। नेक्स्ट प्लीज, आगे दो। जो बच्चे जवाब देना चाहते खड़े हो जाएंगे। पीछे से भी कोई चाहता है इसका जवाब देना। चाय फीकी इसलिए नहीं थी कि उसने प्यार से नहीं की थी उसको। चाय बहुत प्यार से दी गई थी, बस फीकी थी। यस, इधर से आएंगे हम। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो बिल्कुल राइट आंसर टच होगा आपको। जी, चाय फीकी इसलिए थी क्योंकि उन्होंने मन से नहीं पी थी। उन्होंने मन एक बना लिया था कि ये चाय फीकी है। नहीं, मन से पी रहे थे वो न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे थे ना, उनको अच्छा लग रहा था दोनों काम करने, बहुत मन से पी रहे थे वो। नेक्स्ट, आइए आइए आइए। क्योंकि उनका ध्यान कहीं और था, न्यूज़पेपर पढ़ने में था। ध्यान चाय में भी
चला ना कि चाय फीकी है, अगर ध्यान नहीं होता तो वो चुपचाप पी लेते. Not only the spiritual, but also touching the mind and the heart, that definitely move our hands to go ahead. But as a principle, my dear students, what we need to do with all that we have been hearing, the promises that we have made, the good things that we have learned through the analogical stories, the touching words, the exercises, the questions, that all sum up only in the choice that I take, the challenge that I face, the change that I bring, and the final that see is the communion that I build. What is my choice after hearing this? When I go out from this campus, what is my choice? Will I take my choice as a decision that I will change? I will become what Didi has told us. I will every day, morning and evening, I will do practice what she has given us, this mantra. If I have taken a choice, definitely the change can come in our behavior. The change can come in my intelligence. The change can come in my spiritual realm. The speech can, also the change can come the way that I interact with the others. And the final C that change can bring is the communion that I built. Is the communion with God, communion with myself, and communion with the others. And that is the ultimate source of summit of one's own behavior in this earth. I will build a better communication with myself, believing in me, being born again, and being a blessing to myself. That is what communicating myself. And the second, that I communicate with God. The God is the creator of our soul, and the soul is instilled in us, and the soul will go back to the creator, and definitely it will give an account of what has been done during in this physical earth. And then we communicate with the others, and thus when we have the communication with oneself, the communication with God, and the communication with the others, then I build a communion, and the communion is the union with the harmony and peace. My dear teachers and students, we put our hands together. We have Zain the Zealot. Ma'am, you have brought us the goodwill. The great message that all religion preach is the peace and tranquility and the love. And that you have given us. Our children are indeed very fortunate, and they take this opportunity to thank you immensely and look forward such more talks and to jubilate our hearts and minds. Roshni Didi ma'am, also you have brought the great person among us, amidst us. We are indeed thankful to you that you have given us this opportunity for our students, for us all. Along with the teachers and the institution and the school, St. James, we thank you and thank you immensely. Thank you once again, ma'am.